going to cover the two topics of electrostatic. It is from 12th standard. This is the first chapter of 12th standard. Name is electrostatic, where charges are going to be at rest. Then we will discuss about everything when charges are at rest. So are you ready? Let me start. So I am going to open PPT as a reference so that we can be series wise. Okay. So let me open as a documents download. Then. Hold on. So over here, yeah. Then one. Not one, but second. Second one. So in this we are going to cover basic properties of electric charge. This we have completed in the previous PPT, but right now just we will take it as a recap or as a summary or as a revision, short revision. Then we will move on charging methods. Then we will talk about Coulomb's law in vector form. First of all, we will see Coulomb's law in a scalar form. Then we will move on Coulomb's law in vector form. Then we are going to discuss about the principle of superposition. Okay. These are topics that we are going to discuss in this particular session. Is everything okay? So yeah, these are. Let me check. Timer is working, audio is also working, everything is okay, nothing is. So this is unnecessary. Electromagnetism. In the previous PPT, we just discussed electromagnetism parts. What are the chapters that are discussed in electromagnetism? Those chapters we saw. So electromagnetism is nothing but this is the science of a combination. But main thing is that this is a combination of electrical phenomena or magnetic phenomena. There are two things, electrical phenomena and magnetic phenomena. Study of this phenomena, electrical and magnetic phenomena, is known as electromagnetism. Okay, so the study of electric phenomena and magnetic phenomena is known as electromagnetism. Otherwise, you can say that electromagnetism is nothing but this is a science of combination of electrical and magnetic phenomena. Okay, this was a definition of electromagnetism. In this, just we we study chapters. Whatever is happening as a phenomena and which shows electrical phenomena. On the other side, you will see that our nature is also showing a magnetic phenomena. So this combination of this electrical and magnetic phenomena, we just name it as electromagnetism. And there are few chapters including, there are few chapters which it contains, and we are going to discuss. You will see 5 to 6 months if this is a course. So 5 to 6 months it will take. It will take 5 to 6 months to cover all the chapters that it contains. Okay. So okay, this was a definition. As a definition, we saw it. So electromagnetism can be divided into two parts. It is saying we can divide it into two parts, and then we will see why is it divided into two parts. Reason is charges are at rest, charges move, charges accelerate. These are the reasons. So charges that are at rest, we just put it another category. Charges that are moving at constant velocity, we just put in another category. So here filter, we are applying filter so that we can't get any kind of confusion. Okay.
So just we divided it into two parts. First is electrostatic. In this category, in this part, just we talk about all the things, but condition is charges should be at rest. This is a condition. Charges should be at rest. Then we will talk everything, each property. But condition is that charges should be at rest. Okay. Then second part is electrodynamics. In this, there are more things. One thing is charge will move with the constant velocity. Otherwise, charge will accelerate. These two things will happen. So in electrodynamics, we just see charges are moving. Whether it will be moving with a constant or with acceleration. Okay. So it deals with the study of charges at rest. Second, electrodynamics, it deals with the study of charges in motion. It also discusses magnetic phenomena. It is including this is containing what? Magnetic phenomena. So yeah, electromagnetic is a combination. You will see where we are talking about electrostatic, electromagnetic, so automatically magnetic phenomena will link automatically. We are not going to force this magnetic phenomena from our side. No, automatically it will link. You will see. So okay, electrodynamics is what? It deals with the study of charges in motion. Just we are saying what? Charges in motion. We are not talking about charges are moving with a constant or it is moving with acceleration. We are not talking about it. We will talk it in details in this electrodynamics. So this was a two part of electromagnetism. Now let's move. Electric charge. Then we saw electric charge. Just we started in the previous PPT. Just we started with the electric charge. This was our first topic of electrostatic chapter. So this electric charge is nothing but exact definition is it is a property which can be acquired or natural. It can be natural. It can be acquired. Acquired means it can any particle can gain electron, can lose electron. This is acquired. Okay, acquired means can gain, not lose. Natural means number of proton is equal to number of electron. Okay, this is a neutral you can say. So इलेक्ट्रिक चार्ज नथिंग बट दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक प्रॉपर्टी होता है उसी प्रॉपर्टी के कारण इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. किसके प्रॉपर्टी के द्वारा? ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी के अंदर और इसी के कारण ये एक प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना और यही बॉडी हमारी एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फिनोमेना और इलेक्ट्रिक. तो याद रखना ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. जैसे इलास्टिक में होता था क्या कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. उसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता था कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता था. सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. ये बॉडी का प्रॉपर्टी है. इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना प्रोड्यूस होता है और एक्सपीरियंस होता है. दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. I hope you got it. Now we are familiar with the types of charge. Everybody is a familiar of types of charge, positive charge, negative charge. But this is not a definition of electric charge. Exact definition of electric charge is this. Okay. So these are types of a charge. One is a positive charge and second is a negative charge. Most of you will say that a positive charge means positive charge. Charge is positive. Negative charge means no, it's incomplete information. If you say positive charge is nothing but charge is positive. If you say negative charge is nothing but this is a negative. But it's an incomplete information. Complete information about it is positive charge means it has more protons. But it doesn't mean that it does not have electron. No, it has electron. But number of electrons are less as compared to number of protons. Positive charge means body is a positively charged. Body is a positively charged. Body is a positive charge. Body is a charge positively, you can say. Means that body has a more protons than electrons. It is a deficiency of electron. इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कंपेयर टू प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है.
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ कमी है, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड वही बात हुआ नेगेटिव चार्ज, इसमें ये हो रहा है कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? देन वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट ऐसा यूनिट हो सकता है, सीजीएस हो सकता है, तो इट इज मेजर्ड, इसे मेजर किया जाता है कूलम। याद रखना ये सभी डिस्कस किए थे हमने प्रीवियस। I know that I am taking time more than required. So okay, I think it's okay. So जो कूलम है उससे मेजर किया है, इट इज मेजर्ड इन कूलम। चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम। यहाँ डिफरेंस क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो चार्ज को मेजर किया था कूलम में, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। कूलम इज नॉट अ सीजीएस यूनिट बट इट्स ऐसा यूनिट। इन प्रैक्टिस we will use what mc, uc और nc। mc का मतलब माइक्रो कूलम, 10⁻³ होता है इसका वैल्यू। माइक्रो नहीं, मिली कूलम, मिली कूलम। ये जो म्यू है इसको बोलते हैं माइक्रो, एन को नैनो, नैनो कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो। तो माइक्रो का सिंबल थोड़ा अजीब है। और ये जो तीनों है, मिलो कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। हमारे जितने भी चैप्टर्स है ज्यादातर यही यूज होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में। जैसे कि हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो ज्यादातर यही तीन आए, तो ये डिफिकल्ट नहीं है याद रखना, समझने में आता है। अगर समझे तो लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते। सीजीएस यूनिट देखिए चार्ज का, देखो ऐसा यूनिट तो सिंपल बात है खुला मतलब, लेकिन सीजीएस यूनिट चार्ज नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। जब सीजीएस पूछेगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर कूलम पूछ रहा है, अगर सिर्फ ऐसा ही पूछ रहा है तो कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सो वन कूलम कितने ESU के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है वन कूलम। तो आंसर इज 3 × 10⁻⁹। यहाँ पर यूनिट एक क्रूशियल रोल निभा रहा है। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो 1 फैराड है कितना कूलम के बराबर होगा, यहाँ पर चार्ज पूछा था, तो ESU चार्ज, चार्ज के ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम इतने ESU के बराबर होता है 3 × 10⁻⁹। लेकिन वहां पर उस जगह पे, लेकिन ये ऐसा ही पूछ सकता है कि 1 फैराडे कितना कूलम के बराबर होता है। इट इज नॉट आस्किंग कि 1 फैराडे इज हाउ मच इक्वल टू चार्ज, लेकिन ये चार्ज है बट इसका ऐसा यूनिट है ना, चार्ज। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज देखे, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसमें तो कोई मास नहीं, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट्स मास, कोई लेंथ नहीं है इसमें। हम चार्ज को पॉइंट लेस मान के चल रहे हैं, यानी पॉइंट पॉइंट कंसिडर करके चल रहे चार्ज को। इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, इसके पास कोई लेंथ नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो एल का कोई जीरो हो जाएगा, मास भी नहीं। पॉइंट सिर्फ हम कंसिडर करें, चार्ज का एज अ पॉइंट कंसिडर, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ पॉइंट। ठीक है, बात करें तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू कुछ इस तरह का, तो उसमें T आता है, Q/T होता है फॉर्मूला, तो T आता है, तो उसके लिए से क्या, फिर ए है, ए यहाँ पर क्या कैरेट रोल हमारा, वी विल सी क्या हाउ डिड इट कम, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, जैसे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी नो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट एड्स अलजेब्रिकली, हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, कोई कोई ये वेक्टर वगैरह ऐड नहीं होता इसमें। इट इज अ कंजर्व, मतलब कि जितना हमने इंडिविजुअली ऐड किया उतना ही हमें एक टुगेदर मिलेगा, और फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो सेम रहेगा, यानी कोई चीज लूज या ज्यादा नहीं होगा, सेम वैल्यू मिलेगा। लेकिन याद रहे इट इज अ कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब ये है कि टोटल चार्ज रहेगा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब, क्वांटाइजेशन ये बताता है कि जैसे जैसे Q है, Q विल बी इक्वल टू प्लस एन ए, यानी ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये मतलब क्वांटाइजेशन। 1 का 1 यानी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट। तो चार्ज एग्जिस्ट, इट इज सेइंग कि चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स
इंटीग्रल की बात करें ना कि डिफरेंशिएशन, राइट? ओके, the charge exists in integral multiples of a fundamental unit of electric charge। जैसा एग्जांपल है ये, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े बहुत बनते हैं, जैसे q इज इक्वल टू प्लस एम ई, जहाँ पर q है उसे शायद ये चार्ज होगा, यस। और ये जो प्लस, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, और ई है सो, ई है सो इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वी विल सी। तो अभी जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 1.6 मल्टीपल 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक, 1.6। अब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज इनवेरिएंट, चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब क्या है कि चाहे वो रेस्ट पे रहे चाहे मोशन में रहे, चार्ज उतना रहेगा। जैसे मान लो 10 कूलम का चार्ज, तो चाहे वो रेस्ट पे रहे या फिर वो मूव करे, वो 10 कूलम रहेगा। एक्चुअल में क्या होता था, जैसे एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मतलब वो ज्यादातर होता नहीं है, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर उसे हम कोई भी बॉडी को अगर हम विद द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कराएं तो उसका मास वैरी करेगा, चेंज होगा, ये देखा गया। तो इसको कहते हैं इनवेरिएंट, मास का इनवेरिएंट होना। तो यहाँ पर चार्ज इनवेरिएंट नहीं होगा, मास हो सकता है लेकिन चार्ज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज है चार्ज का, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। फिर उसके बाद अब स्टार्ट होगा मेन कहानी, वो तो प्रीवियस डिस्कशन था, अब स्टार्ट करें। जैसे मटेरियल्स हम जानते हैं 10 टाइप्स का मटेरियल्स होता है। क्लास 10 तक तो हम सिर्फ 2 मटेरियल्स के बारे में जानते होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 11 या 12 में एंट्री करते हैं तो 3 टाइप्स का मटेरियल्स हमें दिखता है। फर्स्ट, ये दो मटेरियल्स हम फैमिलियर है। जो थर्ड जो एंट्री में आता है वो सेमीकंडक्टर है, इस पर एक अलग से ही चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर शायद होगा। तो कंडक्टर्स क्या होता है, ऐसे कंडक्टर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं वो मूव कर पाते हैं। इंसुलेटर्स में चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर पाते, फिर इलेक्ट्रॉन्स कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। और सेमीकंडक्टर्स है, इसमें दोनों का क्वालिटी होता है, आधा कंडक्टर्स का होता है, आधा इंसुलेटर्स का होता है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, दीज आर 3 मटेरियल। इसे फिर डिस्कस किया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जस्ट जितना यहाँ पर रिक्वायरमेंट है हमें उतना है समझना है इसे। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सभी मटेरियल्स है। ये वैसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये वैसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें वी कैन कंट्रोल, ठीक है, इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आई डोंट केयर, बट इस सेमीकंडक्टर्स में वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये यूज होगा, जितना इनफ है उतना आई डिस्कस्ड। ना कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करें तो इसमें डेफिनेशन दिया होगा टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स इन विच द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, यानी ईच एटम के जितने भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं और मॉलिक्यूल्स आर वीकली बाउंड, यानी एटम के आउटर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वीकली बाउंड होते हैं। और यही कारण है कि वो जो वीकली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री मूव होते हैं, बिकॉज ऑफ वीकली बाउंड है, उस पर ज्यादा कोई फोर्स नहीं लग रहा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए वीकली बाउंड है, तो इसका मतलब वो मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर टेम्परेचर दिया जाए तो वो मूव करें। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, एंड इसे जाना जाता है, ऐसे मटेरियल को जाना जाता है कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, ये वीकली की जगह बाउंड हो जाते हैं, बाउंड बोले तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स which known as insulator, ऐसे materials को insulator कहा जाता है। in insulator there are few free electron, insulator में भी free electrons होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। such materials are also called dielectric। देखो, जिसमें few free electrons होते हैं उसे हम dielectric कहते हैं। इसका भी एक अलग से चैप्टर नहीं है, एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें इसके बारे में टॉपिक होगा इसको लेकर। so in details we will discuss about it when especially topic on this will come there। So this was about conductor and this is about insulator। Now next, चार्जिंग ऑफ बॉडी। एक बॉडी का चार्ज कैसे होता है, बॉडी का चार्ज कैसे होता है, मतलब चार्जिंग ऑफ बॉडी,
एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे चार्ज होता है ये। एक तो न्यूट्रल, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी ले लो, तो न्यूट्रल बॉडी नेचुरल न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब हम ये समझते हैं सामान्य, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है, बॉडी चार्ज नहीं है। इसका मतलब हम इसके लैंग्वेज समझे तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यही मतलब होता है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं है कि उसमें प्रोटॉन नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, बस संख्या दोनों का इक्वल है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल। अगर संख्या कम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब बॉडी चार्ज है, बॉडी चार्ज, या अगर कम ज्यादा हो गया तो हमें न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि बॉडी के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होगा as compared to number of proton in negatively charged body. The next time method of charging, we are going to see what are those methods from which body can be charged negatively or positively, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे इफ वी रब, हम कोई भी बॉडी को रब करें विथ अनदर बॉडी, तो इस तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। कोई भी एक बॉडी लो, उसको रब करो दूसरे बॉडी के साथ, इस जो बीच में प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये जैसे ग्लास रड होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ग्लास रड को हम सिल्क रड के साथ रब करें तो इसमें ये जो सिल्क रड है वो नेगेटिव चार्ज है। कुछ ऐसे ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऐसा पाया गया होगा। तो इसमें क्या होगा, ग्लास रड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आसानी से मूव कर गया होगा इसमें, सेल को क्लॉथ में, ठीक है। तो इसमें बचा क्या, मतलब कि संख्या किसका ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इसमें ऑलरेडी न्यूट्रल था तो अब इसमें नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसमें अब क्या रहा है, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो गया, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो जो अब जो ज्यादा जो संख्या है, बढ़ा तो नहीं है इसमें, लेकिन जो संख्या अभी ज्यादा है वो किसका है, प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह वोलेंट क्लॉथ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्राई, अगर इसको हम इससे कॉम से रब करें तो कॉम है वो नेगेटिव चार्ज होगा, और ड्राई एयर वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैट स्किन है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है अगर उससे रब किया जाए इकोनॉल से। दिस वाज जस्ट एग्जांपल। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, एक सेकेंड मेथड ये है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन भी हम यूज करते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स, एक तो बाय फ्रिक्शन होता है, एक बाय इंडक्शन होता है। इस केस में क्या होता है कि हम कोई एक चार्ज बॉडी लाते हैं ना, वो ऐसा चार्ज बॉडी ना वो गेन करे ना ही लूज करे, बस वो चार्ज रहे, ठीक, चार्ज रहे। जब उसको हम नियर लाएंगे न्यूट्रल बॉडी के तो क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो पोलराइज्ड हो जाएंगे। पोलराइज्ड मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और एक तरफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, वो दोनों अपने एक एक साइड ले लेगा। तो एक साइड क्या हो जाएगा, एक साइड तरफ पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा और दूसरे साइड तरफ पूरे पूरे प्रोटॉन्स रहेगा। इसे ही पोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये तब होगा जब एक चार्ज बॉडी को लाया जाएगा, वो चार्ज बॉडी की ये चीज कहा जाता है, कंडीशन ये रहा जाता है कि चार्ज बॉडी है उसको वो ना इलेक्ट्रॉन, जो भी है, जैसे मान लो बॉडी जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो ना लूज होना चाहिए ना ही उसमें कुछ भी एक्सेस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। जो जैसा है वैसा रहना चाहिए, इसमें जो जैसा चार्ज है वैसे रहना चाहिए। तो जब इसे हम नियर लाएंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएगा, प्रोटॉन एक साइड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा या इधर, ये डिपेंड करता है कि हमने जो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी लिया उसमें कैसा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा। और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रोटॉन को ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ऑफकोर्स इधर जाना चाहेगा और ये इस साइड खींचना चाहेगा। तो इस तरह से ये पोलराइजेशन हुआ।
पोलराइजेशन कैसे हुआ? फोर्स के द्वारा हुआ है, फोर्स के द्वारा, तो ये न्यूट्रल बॉडी। अब दूसरा स्टेप ये है कि बस हमें क्या अर्थिंग लगाना है। जैसे हम अर्थिंग लगाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है ये इसको खींचना जाएगा इधर, लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तरह से कहा जाता है कि बाउंडेड अपनी तरफ फिक्स होते हैं, उतने मूवेबल नहीं होते, मूवेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये वही रहेगा, बस इसको खींचना चाहेगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ पर न्यूट्रलाइज कंडक्टिंग वायर है ये, कंडक्टिव वायर के थ्रू हमने इसे अर्थिंग किया। इन डिटेल इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास अबाउट अर्थिंग। ये न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर जैसे हम इसको रिमूव कर देंगे तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव बच गया। तो इसमें जो संख्या ज़्यादा बचेगा वो किसका आ जाएगा, नेगेटिव जाएगा। न्यूट्रलाइज इसको कर दिया, न्यूट्रलाइज, ठीक है। अब जैसे ही इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो बॉडी के पास क्या रह जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बॉडी क्या रहा, नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से बॉडी को चार्ज किया जाता है, ठीक, गोट इट। अब यहाँ पर समझना ये है, ये तो बायो इंडक्शन है, तो इन शॉर्ट हम समझे तो बायो इंडक्शन क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेशन क्या निकालना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमें एक इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी लेना। इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी की खासियत ये रहेगी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, उसमें कुछ भी ऐड ना हो, कुछ भी लूज ना हो, ये खासियत रहेगा, ठीक है। बाकी जिसे हम चार्ज कर रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, कम या ज़्यादा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग चार्ज बॉडी में नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। इसमें होता है क्या है कि बस हम एक बॉडी को लाते हैं, चार्ज बॉडी को लाते हैं, उसको नियर रखते हैं, तो उसके माध्यम से उस जो चार्ज बॉडी हुआ उसका इफेक्ट पड़ा किस पर, न्यूट्रल बॉडी पर। जैसे न्यूट्रल बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी ये कंडक्टिव वायर जो लगा होते हैं, तब ये न्यूट्रल बॉडी किसके कारण हुआ, नेगेटिव, बस उसको नियर लाने पर न्यूट्रल बॉडी पर इफेक्ट पड़ा, ये होता है बाय इंडक्शन। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अगर अब उल्टा करते, पहले तो हम इंड्यूसिंग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले रहे थे ना, अब इंड्यूसिंग नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज। इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव को खींचना चाहेगा और नेगेटिव को रिपल करेगा, ये हुआ। जैसे हम अर्थिंग कंडक्टिंग वायर लगाए, अर्थिंग लगाने के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, ये माइनस है ना और ये माइनस है, तो इसमें क्या करेगा ये तो खिंचा जाएगा इधर, इधर ये नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा इधर से। तो जैसे नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बचा क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ बचा, इसको बोलेंगे, ये हो गया अब इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। तो अब ये बॉडी कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो माइनस है यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया बाय अर्थिंग, बाय अर्थ, बाय अर्थ, गॉट इट। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली चाहिए कि यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण पोलराइजेशन हो रहा है, तो कहाँ पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, कहाँ पर कम, यानी इससे नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ फोर्स लग रहा है, उसका नेगेटिव का नेगेटिव, ये नेगेटिव को फोर्स लगा रहा है, तो सबसे, तो यहाँ पर लगता है कूलम्ब्स लॉ। देखो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फोर्स कम लग रहा होगा, तो ये इसका और इसका डिस्टेंस कम है, तो इन दोनों का फोर्स कम लग रहा है, इसका इसका नज़दीक है, इन दोनों का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो माइनस प्लस F1 है, तो F1 का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, माइनस माइनस से पढ़ेंगे जो कि F2 फोर्स लग रहा है, तो F1 का फोर्स ज़्यादा है। ये इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी है, ये अब इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, ये अब इंड्यूस्ड हुआ। इसमें नेगेटिव का मतलब है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कम है, दैट्स इट। तो नोट यहाँ पर चीज ये है, नोट पॉइंट ये है कि इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स और नॉर लूज। जो इंड्यूसिंग बॉडी का हम यूज कर रहे हैं ताकि न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सके, तो इस केस में कहना चाह रहा है कि इंड्यूसिंग बॉडी है वो नाइदर चार्ज को गेन करेगा और ना ही चार्ज को लूज करेगा। द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट,
जो नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज है वो हमेशा अपोजिट होगा टू दी दैट इंक्लूडिंग चार्ज इंड्यूस्ड इंड्यूसिंग चार्ज है ना इंक्लूडिंग। यानी देखो अपोजिट नहीं हो रहा है, जैसे कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव, दोनों इंड्यूसिंग है, बस इसमें ये नेगेटिव इंड्यूसिंग चार्ज है और ये पॉजिटिव इंड्यूसिंग, यानी अपोजिट हो रहा है। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज, यानी अपोजिट होगा। अगर हमने इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिवली लिया तो जो रिजल्ट में जो बॉडी न्यूट्रल बॉडी चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह अपोजिट होगा। ये चीज नोटिस करने वाली चीज होगी। तो इंड्यूस्ड चार्ज है जो लास्ट में बॉडी न्यूट्रल बॉडी चार्ज हुआ, उसी को हम इंड्यूस्ड चार्ज कह रहे हैं। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंक्लूडिंग चार्ज बट नेवर ग्रेटर, यानी इंड्यूसिंग चार्ज है वो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू इंड्यूसिंग चार्ज के। इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये जो इंडक्शन है सिर्फ तभी प्लेस लेगा बॉडीज में या तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग में, एंड नॉट इन पार्टिकल्स में नहीं बल्कि बॉडीज में प्लेस लेगा, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, लेकिन पार्टिकल्स में नहीं लेगा, पार्टिकल्स में प्लेस नहीं लेगा ये इंडक्शन। फिर नेक्स्ट है चार्ज डिफर्स फ्रॉम मास इन द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि इन एसआई यूनिट्स चार्ज इज अ derived फिजिकल क्वांटिटी while mass is a fundamental quantity। ये ट्रूथ है, mass is a fundamental quantity and charge is a derived physical quantity। Charge is always conserved but mass is not। Yeah, this is also truth। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि चार्ज किस तरह से मास से डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है। जैसे कि एसआई यूनिट में बात करें तो चार्ज इज अ derived क्वांटिटी, लेकिन मास है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमेशा कंट्रोल रहता है, ये कांस्टेंट रहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन मास केस में ऐसा नहीं होता, वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज हो सकता है। अगर वो बॉडी विद द स्पीड ऑफ लाइट अगर मूव करे तो वो वैरी करने लग जाएगा। तो इस तरह डिफर है फ्रॉम चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट मास के। अगर मास नहीं तो देखो मास के पास है तो चार्ज होगा, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। लेकिन मास कैन एग्जिस्ट, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब समझ लो बॉडी, अगर बॉडी के पास चार्ज नहीं है इसका मतलब वो न्यूट्रल बॉडी है, और अगर उसमें चार्ज हो गया तो चार्ज किस में होगा, तो बॉडी में चार्ज होगा ना वो। लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी अगर चार्ज हुआ है तो इसका मतलब बॉडी चार्ज हुआ ना, तो बॉडी चार्ज हुआ तो इसका ऐसा मतलब है कि बॉडी के पास मास है। लेकिन मास कैन एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, यानी यानी एक शॉर्ट में कह रहा है कि बॉडी है वो न्यूट्रल है, बॉडी है न्यूट्रल है। अगर बॉडी चार्ज है इसका मतलब है कि मास में वो चार्ज हुआ है बॉडी। समझ रहे हो, इस तरह दोनों में डिफरेंट। चार्ज आर टू टाइप्स, हम जानते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ओनली वन टाइप जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी, अगर चार्ज बॉडी मूव कर रहा है तो मास इंक्रीजेस वाइल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि बात इनवेरिएंट वाला हो रहा होगा ना, इनवेरिएंट चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज नॉट, मास इज वेरिएंट। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, अगर मान लो कि बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज कर सकता है, लेकिन चार्ज चार्ज कांस्टेंट रहेगा। गॉट इट, ये डिफरेंट है, चार्ज इज अ डिफरेंट फ्रॉम मास। इस ये कुछ ये केसेस। फिर है क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट तो इट्स वेट कितना होगा। मान लो एक बॉडी है उसको चार्ज किया गया, तो आप बताना है कि वेट उसका कितना होगा। देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर ये चीज नहीं बोल रहा, ये नहीं बता रहा है कि जैसे दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी लिया हमने, जैसे हम चार्ज करेंगे तो यही होगा। मान लो कि इसने ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम गया और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यही ना हुआ, बढ़ गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है,
ये तो चार्ज, इसका वेट बढ़ गया लेकिन इसका वेट कम गया, इसका वेट कम गया, लेकिन ये एक पार्टिकुलर बॉडी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस केस में अगर बॉडी की बात नहीं कर रहा है एक पार्टिकुलर कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट, तो इसका मतलब हम दोनों चीज को कंसिडर करके आंसर करेंगे। तो ये इसमें क्या होगा कि एक बॉडी का मास घटेगा, स्लाइटली घटेगा, ज्यादा नहीं घटेगा, और दूसरा बॉडी का इंक्रीज होगा। तो मैं इंक्रीज स्लाइटली और मैं डिक्रीज स्लाइटली, तो इसमें मैं डिक्रीज स्लाइटली, मैं इंक्रीज स्लाइटली, ऐसा केस हो। ठीक है, दोनों बॉडी में चेंज आएगा। दिस वाज वन क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस इज फॉर यू। दिस इज, देखो एक इलेक्ट्रॉन में मास होता है, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू, बट यस दैट। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स है। 10⁻12 ये कोई छोटा वैल्यू नहीं। कौन से पार्टिकल्स है? तो न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियाई, और वो फॉल करता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10⁻12 फॉल कर रहा है ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। स्फीयर कैसा है? न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं। इस पर इतने सारे 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल करता है एक सेकेंड में। तो कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। वो टाइम हमें पता करना है जब स्फीयर चार्ज हो जाएगा बाय 2 माइक्रोकूलम, इतना तक चार्ज हो जाएगा। तो इतना जो चार्ज होगा तो कितना समय में चार्ज हो जाएगा? अगर एक सेकेंड में ये 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फोल्ड कर रहा हो उस न्यूट्रल स्फीयर पर, तो ये कहना चाह रहा है कि जब इतना हो जाए तो हमें ये बताना है कि जो इतना चार्ज हुआ उस स्फीयर पर, तो कितना टाइम लगा। दैट इज व्हाट इट्स आस्किंग। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 10⁻6 पर यहाँ पर ये याद है, ये Q इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 10⁻6 क्या है? ये है चार्ज। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि इतना जब रहेगा तो इतना चार्ज इस पर हुआ तो कितना टाइम लगा। तो ये तो दिया हुआ Q इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 10⁻6। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में इतना आ रहा है ना, 1 सेकेंड में, तो हम T से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻12 2 इलेक्ट्रॉन 2e। कितना रेट से जा रहा है? जो अल्फा गिर रहा है वो कितना रेट से, यानी अल्फा जो गिर रहा है 10⁻12, ये 1 सेकेंड में इतना गिर रहा है इस पर। तो T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 10⁻16 इतना कुलम, इतना कुलम, और ये 2 मल्टीप्लाई 1.6, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 2 मल्टीप्लाई। तो होल्ड ऑन, मैं अगर साफ सुथरा लिखूं, इसमें क्वेश्चन आंसर ये है कि जैसे ये क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना है? 2। ये क्या है कि ये बोलना चाह रहा है कि इतना कब होगा, यानी इतना चार्ज होना ये होगा इस बॉडी, इस बॉडी जो चार्ज करेगा इतना कूलाम चार्ज करेगा। ठीक है, 2 माइक्रो। एक तरफ से क्या है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, 2 मल्टीपल 10⁻⁻6 इतना कूलाम चार्ज हो जाएगा ये। तो अगर इतना कूलाम चार्ज होता है, अगर एक सेकेंड में 10 इन 1 सेकेंड ना, इन वन सेकेंड अगर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स आ रहा, अल्फा पार्टिकल्स यानी एक सेकंड में इतना, तो फिर इतना चार्ज होने में कितना टाइम लगाएगा, ये बात हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ना, और ये इक्वल है किसके? T, टाइम लेगा वही पता करना, T मल्टीप्लाई क्यू टी वाला लग जा रहा है, क्यू टी वाला लग जा रहा है, जिससे Q इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई ना क्यू टी। I इज इक्वल टू क्यू टी।
तो टी मल्टीप्लाई और फिर कितना यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है, द आंसर इज 10⁻12 2 इलेक्ट्रॉन। ये आया यहाँ से हीलियम का जो 2+ होता है, हीलियम का 2+, ये आया। ओके, इसे बस सिंप्लीफाई करना। अब रहा कैलकुलेशन मेथड, अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रहा। तो जैसे हम ये टी को यहाँ रखेंगे, टी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये बच्चा 2 × 10⁻⁻6 गुना अपॉन ये नीचे आ जाएगा 10⁻12। तो ये 2, ए का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 ठीक है। और ये बचा यहाँ पर, अब सिंप्लीफाई करना है सर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई 2 से 2 कटा। अब ये 1.6 है, यहाँ से 1 0 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचा 10⁻6 ठीक है। और यहाँ पर जैसे 10 12 है, ये इसको 1 0 दे देंगे तो यहाँ से बचा कितना 16 फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 10⁻⁻20 गॉट इट। अब जैसे ये -20 अपवर्ड जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे 10 तो ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻6 मल्टीप्लाई 10 + 20 ना, +20, यहाँ बचा हमारे पास 10⁻12 और इससे भी 12 को ऊपर भेज दे तो बचेगा क्या 10⁻−12, नीचे बचा 16। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है कितना, तो ये बचा -14, तो -14 और -14 कितना हो जाएगा, -14 और -12 26 बचा, तो 10⁻⁻26 अपॉन 16 लेकिन 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 ठीक है, लेकिन ये 12 है ना, तो 12 है तो ऊपर जाएगा माइनस में अब प्लस में, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पर बचा ये -8 फिर -6, तो 10⁻100 अपॉन, यहाँ बचता है 100/16, 100/16, 16 6 6 9, तो यहाँ पर आंसर आएगा t इज इक्वल टू 6.25 सेकेंड। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद तो यहाँ 8 बचता है, 8 में से जाएगा -6 तो 2 बचा, तो 10⁻2 आ जाएगा 100/16। जैसे हम इसे लेट में कैलकुलेट किया 100/16 कितना होता है, 100/16 यानी 100/16, यस 6.25, दिस इज करेक्ट आंसर। इस तरह सिंप्लीफाई, बस यहाँ से क्या था, कैलकुलेशन पार्ट था, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पार्ट, और ये सब आया स्टेटमेंट से, ये सब आया स्टेटमेंट से। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस वाज ऑफ क्वेश्चन। अब ये बताएगा, ये बताना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 6.25 सेकेंड में इस बॉडी ने कितना चार्ज, कितना ये चार्ज हो चुका होगा, 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम हो चुका होगा, अगर 1 सेकेंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स गिर रहा है इस पर, ठीक है, इस पर गिर रहा है, तो 6.25 सेकेंड में ये 2 माइक्रोकुलम चार्ज हो जाएगा, हो चुका होगा, हो जाएगा। गॉट इट? ये मतलब, इसका मतलब क्या आंसर का, तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। नॉन नेक्स्ट, वही बता रहा है 1 सेकेंड में कितना पार्टिकल गिर रहा है, तो इतना 10⁻12, 30 सेकेंड में कितना होगा, 20 × 10⁻12 हम जानते हैं।
कि 10t × 10⁻12 कूलम आ जाएगा। फिर ये जो कि 2 मल्टीप्लाई की बात हो रहा था 2 माइक्रो, वो उसका वैल्यू है। तो टी सेकेंड में है ना 10, तो ये इक्वल है किसके, तो हम जानते हैं कूलम, ये चार्ज इक्वल है कूलम। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करना तो टी का टी हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पीस ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन का पीस रब किया जाता है विथ वूल, विथ वूल, वुड नहीं बल्कि वूल, तो एक चार्ज, कितना चार्ज, -2 × 10⁻⁻7 कूलम, इतना चार्ज डेवलप हो जाता है उस पीस ऑफ पॉलिथीन में, यानी पॉलिथीन का जो टुकड़ा है जिसे रब किया गया वूल के साथ, वूल के साथ, तो इतना कूलम चार्ज हो जाता है, वो उसमें डेवलप्ड हो जाता है उस पॉलिथीन, उस पॉलिथीन के टुकड़े में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास, अब हमें ये पता करना है कि अमाउंट ऑफ मास कितना है, मास का अमाउंट कितना है, विच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन, जो कि ट्रांसफर किया गया पॉलिथीन में, पॉलिथीन में अब मास कितना होगा, क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें कूलम से डेवलप हुआ है, तो ऑफकोर्स मास तो उसमें बढ़ जाएगा ना, तो वही हमें पता करना है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इसका आगे दिया हुआ है, देखो ये है करेक्ट, ये सभी ऑप्शन है इसके, ठीक है। इस 6.25 सेकेंड जो हम पिछली वाला आए थे, तो यहाँ पर यूज करना है क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ क्यू दिया हुआ है -2.2 × 10⁻⁻7 कूलम, कूलम, फिर वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज, इस स्लाइड में हम कूलम्स लो उसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्वेश्चन था वन, जो कि पॉलिथीन वाला, ये था एक, और एक पॉलिथीन वाला, ये हमने देख चुका था। फिर उसके बाद पॉलिथीन, तो यहाँ क्यू का वैल्यू इतना है, दिया हुआ है, ये इक्वल होता है एन, यानी ये क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो वही ये वही पुट हो जाएगा, 1000 निकला, ठीक है। ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होने के बाद, ये यहाँ पर सिंप्लीफाई होने के बाद आया, तो सिंप्लीफाई जैसे होगा फिर यहाँ पर एक चीज लग जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये मास ऑफ टोटल है विच इज इक्वल टू एन, यानी ये टोटल मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ टोटल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन कितना है वो है 125 मल्टीप्लाई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 केजी, ठीक, इस तरह ये सिंप्लीफाई होगा। फिर नेक्स्ट है, ये टिप्स है थोड़ा बहुत, फिर है चार, हमने देखा चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शन बाय इंडक्शन, एक बच गया बाय कंडक्शन, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर, इसे और डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन लेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो इस केस में क्या होता है कि जैसे दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, और इसमें हमने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया, दोनों बॉडी को हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, तो इस केस में क्या होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का फ्लो होगा, यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा।
अब ये बात निर्भर करता है, अब ये कैसे जाने कि किस बॉडी से फ्लो होगा, किस बॉडी में जाएगा, एंट्री करेगा, या फिर, तो इसका आंसर ये है कि जिसमें ज्यादा हायर पोटेंशियल होगा वहीं से चार्ज का फ्लो होगा, और जिसमें लो पोटेंशियल होगा उसी में एंट्री करेगा वो चार्ज। तो चार्ज follows from the body which has a higher potential to the body which has a lower potential. That's it. This is the about charging by conduction. The answer is charge follows from charge follows body from the body which has higher potential, यानी जिस बॉडी के पास हायर पोटेंशियल होगा उसी बॉडी से चार्ज फ्लो होगा, और ये जो चार्ज फ्लो होगा वो किस में एंट्री करेगा, जिस बॉडी के पास लोअर पोटेंशियल होगा। तो हैज हायर पोटेंशियल टू द बॉडी विच हैज लोअर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह चार्ज होता है, बॉडी चार्ज होता है बाय कंडक्शन। इसमें ये दोनों को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, ठीक। तो इसे हम डिजाइन कुछ अपने तरह से कर सकते हैं, जैसे ए बॉडी इस बी बॉडी, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना, तो कंडक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फॉलो होगा, चार्ज फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये फॉलो किससे होगा, ये बात निर्भर करता है कि किस बॉडी के पास हायर पोटेंशियल है और किस बॉडी के पास लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही फेमस है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। कंडीशन ये है कि दो पॉइंट्स लेना है और दोनों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम उसी चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं जो चार्ज रेस्ट। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो लगेगा फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्शन दो बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फोर्स जो होगा रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन, दोनों चार्जेस जो कि रेस्ट पर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, चार्जेस का प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी Q1 या Q0 ले सकते हो, Q1 या Q2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन या अट्रैक्शन हो सकता है। एंड इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल है वो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कहने का मतलब ये Q1 एंड Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर लगेगा, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस है, तो इसका मतलब रिपल होगा, रिपल्शन होगा। जो जितना ये फोर्स लगा रहा होगा उतना सेम फोर्स ये भी क्वांटिटी, ये भी चार्ज लगा होगा, दोनों में वैरी नहीं होगा बल्कि सेम होगा दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, एक वो न्यूटन्स लॉ का थर्ड थर्ड नियम आता है, थर्ड नियम, जितना ये फोर्स लगा रहा होगा उतना ये फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इफ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये कॉलम्स का स्टेटमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म, यानी एफ जो ये एफ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस है Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर Q1 और Q2 है वो वहीं के वहीं है, Q1 और Q2 वहीं, बट ये क्या बोलता है, मान लो डिस्टेंस फिक्स है, सिर्फ Q1 और Q2 को अगर बढ़ा देंगे तो इस केस में फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं देखें आर को, क्यू और क्यू नोट को कांस्टेंट रखें और आर को बढ़ा दें, आर वैरी करें, तो अगर आर नज़दीक कम हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स बढ़ेगा, अगर आर बढ़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स कम लग रहा है,
दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता ही ऑटोमेटिक, तो दैट कांस्टेंट इज नोन एज के बोल सकते हैं, या फिर इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये सिर्फ मीडियम को दिखाने के लिए आता है, मीडियम को बताने के लिए कि हम कौन सा मीडियम यूज, ये जो दो चार्जेस है किस मीडियम में यूज किया जा रहा है। तो आंसर इज कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी यानी स्पेस है वो फ्री स्पेस, यानी बोल सकते हो कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं। तो ये जो बताता है कि हम जो ये दो चार्जेस जो लग रहा है फोर्सेस वो फ्री स्पेस में लग रहा है। सो एब्सोल्यूट इज नोन एज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसका वैल्यू होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक चीज यहाँ नोटिस करना है, ये जो आया है यूनिट्स, वो इसमें जो के हमने लिखा है बस के की इसकी वैल्यू हमने के पुट किया है, सिर्फ के। और के जैसे पुट करेंगे तो बस यहाँ से हमें ये इसका यूनिट्स आ सकता है, तो के क्या यहाँ जाएगा तो एफ डाउनवर्ड आ जाएगा। तो सिंपल हमें समझना था कि इसका स्टेटमेंट क्या है, हम इसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या है, फोर्स कब घटेगा या कब बढ़ेगा। ठीक है, और फिर हमने देखा अबाउट कांस्टेंट, इसमें आपसे नोट के बारे में जाना है कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो मीडियम यहाँ पर है वो फ्री स्पेस है, इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस कोई ग्रेविटेशन वगैरह नहीं है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में इसको देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम दो दो चार्जेस लगे, दो चार्ज, तो हमें यहाँ पर पहला जो काम होता है हमारा पोजीशन को मतलब चार्जेस हम ले रहे हैं, पार्टिकल तो ले रहे हैं, तो हम चार्जेस का पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी होना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर इस केस में इस ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो इससे लेके चले तो एक ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस चार्ज का लोकेशन हो जाएगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। और इसका जो ये सेकेंड चार्ज है इसका लोकेशन, ये क्या बोलते हैं, इसका लोकेशन, लोकेशन या पोजीशन बोल सकते हैं। तो हम ये ड्रॉ करते हैं, इस तरह से पोजीशन ड्रॉ किया जाता है किसी भी चार्जेस का विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 इसकी लोकेशन है, ये R2 इसकी लोकेशन, तो इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया और डायरेक्शन दिया है, तो एक्स आई है कैप है, वाई आई कैप है, जेड आई के कैप। ठीक है, ये सभी क्या डायरेक्शन भी है और इसमें कोऑर्डिनेट्स भी। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, इसका मतलब है F21 का मतलब है, तो ये तो R1 है, ये R2 है, तो ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है, इसका पोजीशन और इसका वेक्टर। क्योंकि हम इस कूलम्स लॉ के इन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो एवरीथिंग यू विल सी क्या बोलते हैं वेक्टर, एवरीथिंग विल बी वेक्टर एक्सेप्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेप्ट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज है कि ये फोर्स लगा रहा होगा, अब दोनों सेम हमने लिया, दोनों सेम चार्जेस लिए, लाइक चार्जेस, तो दोनों में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है F1, तो इसके कारण लग रहा होगा F2 के कारण। F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन F1, फोर्स ऑन Q2, जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो F1 के द्वारा लग रहा है, और जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F2 के द्वारा लग रहा है, ये मतलब है। यानी फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसके कारण फोर्स जो लग रहा है इस पर, तो इसका मतलब ये हुआ F2 है। ठीक है, के लेंगे फिर यहाँ पर Q1 और Q2 हो जाएगा। डायरेक्शन, ये R जो है यहाँ पर हम आर 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 स्क्वायर था, आर स्क्वायर, और हम यहाँ पर इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आर क्या पाएगा, जो यूनिट वेक्टर आता है क्यों आता है, ज़्यादातर देखा गया कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन सके। तो हमने जैसे आर कैप लगाया, और हम जानते हैं कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ना, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुआ है। यहाँ पर आर वेक्टर लगा तो ये आर वेक्टर आ गया, फिर अपॉन मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, तो आर से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आर, इसका मतलब आर ही है। ठीक है, आर मतलब
तो स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक आर और मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्यू बन गया, और यहाँ पर आर वेक्टर लगा। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि ये जो दो फोर्स लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है एक दूसरे के रिपल्शन लग रहा है, यानी each action has equal and opposite reaction. Each action has equal and opposite action. This is what is a third law of Newton's law. तो यहाँ पे भी वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है। दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, जितना यहाँ फोर्स लग रहा है वहीं इतना फोर्स लग रहा है, बस दोनों में अपोजिट लग रहा होगा। ये माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट लग रहा है दोनों में, अपोजिट। गॉट इट, गॉट इट। बाकी ये सब पोजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह है इन दोनों के बीच में। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, जैसे हम R1 से R2 जा रहे हैं इस तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर रिवीजन ऑफ वेक्टर्स, जैसे हमने पढ़ा है ट्रायंगल लो, ये जो आर ई वेक्टर होता है, डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ए कैप, यहीं से यूनिट वेक्टर निकल के आता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये जो आया ये यहीं से आया। ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल लो कहता है जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर इस तरह और इस ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो जो थर्ड रिजल्टेंट आता है वो कनेक्शन अटैचमेंट कुछ इस तरह से रहता है, हेड टेल टू टेल, हेड टू हेड रहता है इस तरह। जो ये थर्ड है वो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ये कहता है कि इन दोनों का सम, ये जो थर्ड है इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम ये थर्ड रिजल्टेंट है। तो जो आर वेक्टर है इसके पास तीन एक्सिस होता है, तीन डायरेक्शन होता है, आई कैप जे कैप जे कैप के कैप, तीन एक्सिस है, तीन कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो एक्स वाई जेड है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? जस्ट हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो सभी ये सभी किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। बस यही हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस केस में क्या होता है कि हमारे पास दो से अधिक, अगर दो से अधिक चार्जेस हैं, इस केस में हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें? पहले नंबर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है, क्यू पर लग रहा होगा Q2 के द्वारा, या फिर क्यू नोट पर जो लग रहा है फोर्स Q1 के द्वारा, जो इंडिविजुअल फोर्स है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस रिजल्टेंट फोर्स में आएगा, रिजल्टेंट फोर्स में, ठीक है। जो चेंज आएगा रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन इंडिविजुअल फोर्स अपना जितना भी वैल्यू है उतना ही रखेगा, वो कॉन्स्टेंट रिमेन सेम। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट चेंज बाय अनदर चार्जेस। मान लो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो थर्ड चार्जेस आने के कारण कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज सिर्फ नेट रिजल्टेंट में आएगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स में देखें तो वो क्या होता है इस केस में, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ना, तो वो जो पॉलीग्राम पॉलीगन, वो जो फोर्थ आता है जब ज़्यादा वेक्टर्स हो, तो इस केस में कैसे ऐड करें? तो हम सबको ऐड कर देते हैं, तो एफ नेट हो जाएगा। तो एफ नेट में जितने भी चार्जेस आए, चार्जेस का जितना भी फोर्स लगे सबको ऐड कर दो, F1 प्लस F2 F3 इस तरह ऐड कर दो, ये निकल, इससे हमें क्या प्राप्त हो गया? एफ नेट प्राप्त हो जाएगा। फिर ये है वो बेसिक वाला चाहिए इसमें, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। बेसिक वाला चाहिए। नेक्स्ट जैसे ये ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये जो वर्टेक्स पर है, वर्टेक्स पर क्या है? चार्जेस है। ट्रायंगल के वर्टेक्स पर चार्जेस है, तीन चार्जेस है, ठीक है। तीन चार्जेस A1 B A B 3 ABC। ये कहना चाह रहा है कि तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ए, ठीक है, तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। हम तो जानते हैं कि इंडिविजुअली जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। चेंज नेट फोर्स में आता है। चेंज किस में आएगा? नेट फोर्स में। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे वो कूलम्ब्स लॉ वाला, तो एफ बी, यानी ये पूछ क्या रहा है? फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। बी पर कितना फोर्स लग रहा है? बी पर, तो इधर से ये फोर्स लगा होगा, ये प्लस बी है, ये प्लस बी, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू। तो इधर रिपल्शन फोर्स है, यानी इधर की साइड, और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी इधर की साइड जाएगा, ये वेक्टर इधर की साइड और ये वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? तो इसका रिजल्टेंट ये डायगोनल आएगा। पैरेललोग्राम हिसाब से देखें तो डायगोनल, और ये पैरेललोग्राम ही बनाएगा एक तरफ से, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू 60 डिग्री होता है।
तो ये वन बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 60 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये 120 होगा। इसमें हम जानते हैं कि ये जो एफ नेट आया है वो एफ आया है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बाइसेक्टर बता रहा है, बाइसेक्टर है ये, बाइसेक्टर। ये नेट फोर्स है वो बाइसेक्टर किसका, एंगल सी बी, और ये इसका एफ तरफ जो जा रहा है इसका बाइसेक्टर है, यानी 60-60 पर ये वैल्यू कट रहा है। ठीक है, ये दोनों इस पर बात है। तो यानी फोर्स ऑन बी बाय, यानी फोर्स ऑन बी बाय वो है एफ एज्यूम्ड, और फोर्स ऑन बी बाय सी वो भी एफ आया। दोनों क्या बता रहे हैं, एफ एफ करके कितना आ रहा है 120, यानी बाइसेक्ट। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ नेट। ये बेसिक जैसे पैरेललोग्राम में बताता है, तो हम रिजल्टेंट ये इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर दोनों का वैल्यू कितना है, ये एफ है ये एफ है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये इसका जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसका है। तो इस केस में क्या आता है, जो एंगल होता है उसमें जो नेट रिजल्टेंट जा रहा है वो बाइसेक्ट होके जा रहा है, ये मतलब था यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये कहना है कि ये एक तो वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो दोनों का जो फोर्स लग रहा है, न्यूटन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ। ये कहना चाह रहा है कि फोर्स ऑन बी ए के द्वारा कितना लग रहा है इस पे फोर्स, तो वो लग रहा है ए। फोर्स ऑन बी किसके द्वारा, सी के द्वारा, वो भी लग रहा है ए। यानी ये साइड में एफ हो गया, ये साइड में एफ हो गया, यही तो हो रहा है। तो दोनों तरफ सेम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दोनों को वेक्टर में मान लो कि एफ एफ इक्वल है, फोर्स इक्वल है, तो इस केस में जो नेट जो फोर्स आएगा वो बाइसेक्ट होकर जाएगा उस एंगल, जैसे ये एंगल तो इस एंगल में बाइसेक्ट होकर जाएगा। बाइसेक्ट होने का मतलब ये ऑलरेडी 120 था टोटल, तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जैसे 2 पॉइंट चार्जेस है, हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए। एक है +3 माइक्रोकुलम, यानी 3 × 10⁻³ -3, तो नहीं होगा क्योंकि वो मिली कुलाम के लिए आता है, तो -6 होगा ना। फिर उसके बाद है दूसरा जो चार्ज है वो कितना है, +8 माइक्रोकुलम है। दोनों क्या कर रहा है, रिपल करेगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है विथ अ फोर्स। कितने फोर्सेस है, 40 न्यूटन। जितना ये फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन, उतना ये भी चार्ज 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि थर्ड न्यूटन्स लॉ यही कहता है ना, इफ अ चार्ज ऑफ माइनस, यानी इतना चार्ज -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच चार्जेस, अगर इन दोनों में 5 - 5 माइक्रोकुलम ऐड कर दें, तब कितना फोर्स होगा। जब इनिशियली इतना चार्ज था +C माइक्रोकुलम, और दूसरा चार्ज के पास +8 माइक्रोकुलम था, दोनों रिपल कर रहा था, कितने फोर्स से 14 न्यूटन। अब सिर्फ इतना हुआ है कि इस दोनों में -5 माइक्रोकुलम ऐड करना है, अब बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो सिंपल बात है, टेंजेंशियल में तो इतना फोर्स से रिपल हो रहा था, अब सिर्फ इसको हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ बचा कितना, -2 माइक्रोकुलम, और यहाँ बचा +3 माइक्रोकुलम। अब दोनों में ऐड क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना कि रिपल्शन। तो इस केस में -2 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम है, तो क्या हो रहा है उसका, तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 6 बचा, 6 है ना, 6 बचा। अब ये जो पहला है इस इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन ले लिया हमने, फिर ये दूसरा इक्वेशन, ये इनिशियली था, इनिशियली 40 न्यूटन से फोर्स लग रहा था दोनों। अब हमें सेकेंड से, तो दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो फिर F1 ये निकल जाएगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा। तो यार आर स्क्वायर कट जाएगा, कैसे के भी कट जाएगा, ये जो यूनिट से दोनों कट जाएंगे। अब बचा ये मल्टीप्लीकेशन, 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 6, 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 6। तो एक तरफ क्या आ गया, 24 और 6, यानी एक तरफ से देखिए तो 3 × 2 = 6, यानी 4 आ गया ना, 4, और 4 10 जा 40 हो जाएगा, तो F1 14, 14 अपवर्ड एंड 10 डाउनवर्ड, तो 4 10 4 जा 40। तो और जो माइनस है ये क्या दर्शाएगा, माइनस, या फिर पॉजिटिव भी ला सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है।
तो जो फाइनल आंसर आया 10 न्यूटन। तो ये बता रहा है क्या कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। जब हमने -5 माइक्रोकुलाम ऐड किया तो हम इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है। तो पहले केस में तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, अब केस में कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, दिस वाज वन क्वेश्चन। अब इसमें देखो, पहले तो हमने ट्रायंगल पर देखा, ट्रायंगल के ईच वर्टेक्स पर तीन तीन चार्जेस थे और इक्वल डिस्टेंस था, डिग्री 60 डिग्री बना हुआ था। तो हमने देखा कि उसमें दो बार दोनों का फोर्स इक्वल आया, तो दोनों फोर्स इक्वल आया तो इसका मतलब बाइसेक्ट किया 60 डिग्री पर। अब इसमें अब इसमें हमने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर के चार वर्टेक्स होते हैं, चारों वर्टेक्स पर चार्जेस हैं, चार्जेस लगे हुए हैं, और सभी चार्जेस एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस से सेपरेटेड, इक्वल डिस्टेंस पर है, रखे हुए प्लेस्ड है, जैसे ए है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, बाय दिस बाय दैट। यहाँ पर देख रहे हो 2 कूलम्ब दिया, टू 2 क्यों दिया, तो सभी इक्वल नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन है, इसी बेस्ड है जो अभी हमने समझा। दिस इज होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ये था हमारा थर्ड पीपीटी, दिस वाज आवर थर्ड पीपीटी। गॉट इट? एक क्वेश्चन होमवर्क वाला, एवरीथिंग इज